Hey all, welcome back to my channel. Today I have brought the part 7 of previous year question paper of November 2020 of NET Computer Science and Applications. So in this video I am going to take few questions with solutions well explained. So let's together prepare for the coming exam. आज का जो वीडियो है in that there are questions relating to mathematical logic and Boolean algebra. Yes, just a quick revision for those who are good at the subjects. Yes, so let's get started for the video. So the first question is if f of x is equal to x is my friend and p of x is equal to x is perfect, then what will be the translation of some of my friends are not perfect? Okay, so before this I would like to tell you that this is a question of predicate logic, which is an extension to our propositional logic only. So what happens in predicate logic is we try to capture the meaning in a better way, meaning of statements in a better way we can capture in predicate logic. So it makes use of predicates. Okay, so say for example, if I give you an example of x is greater than 10. Okay, so I am talking about x is my subject and the predicate is greater than 10. So I am able to know more about my subject that it is greater than 10. So this is a predicate part. The predicate refers to a property that the subject of the statement can have. So here the subject is x and it is having a property that it is greater than x. Okay, so if I tell you ki please tell me the truth value of p of x at x, and I give you that x is greater than 6. X is greater than 6 and I tell you that p of 11, what is p of 11? So 11 is greater than 6. Yes, so p of 11 ka value would be what? True. Okay, function p of x and I say x greater than 6, so all the x should be greater than if x are greater than 6, then the value is going to be true. Okay, and again a thing that comes in predicate logic is quantifiers. Okay, quantifiers. So predicates are used along with quantifiers because they can express the extent to which a predicate is true over a range of elements. So कितने रेंज ऑफ एलिमेंट्स के लिए हमारा प्रेडिकेट ट्रू है. जैसे अगर ये 11 ग्रेटर देन 6 है तो अगर 6 से ग्रेटर नंबर होंगे उसके लिए ये ट्रू होगा, लेकिन अगर 5 हो गया, 4 हो गया, 3 हुआ, 2 हुआ, 1, तो इसके लिए वो स्टेटमेंट ट्रू नहीं होगा, राइट. तो क्वांटिफायर्स हमको ये बताते हैं कि ओवर अ रेंज ऑफ एलिमेंट्स वो प्रेडिकेट किस हद तक ट्रू है. इज ग्रेटर दैन जैसे है, इज लेस दैन है, तो ओवर अ रेंज ऑफ एलिमेंट स्पेसिफाई करने के लिए हमारे पास क्वांटिफायर्स होते हैं. तो दो तरीके के क्वांटिफायर्स होते हैं, एक यूनिवर्सल क्वांटिफायर होता है और एक एक्सिस्टेंशियल होता है. यूनिवर्सल और एक existential. They are like this. You would have came across such kind of symbols. Yes, for all and there exist. Yes, so universal quantifier क्या करेगा, ये वो mathematical statements के लिए बताने की कोशिश करता है कि property true है for all the values of variables. तो डोमेन के अंदर जो भी आपके variables होंगे वो true होगा for all the variables. That प्रॉपर्टीज एसेटेड विद द हेल्प ऑफ व्हाट, यूनिवर्सल क्वांटिफायर. और जब एक्सिस्टेंशियल की बात करते हैं यहाँ पे मतलब कि कुछ स्टेटमेंट्स है जहाँ के एलिमेंट्स ये पर्टिकुलर प्रॉपर्टी जो भी होगी उसको satisfy करेंगे. Yes, some mathematical statements assert that there is an element with a certain property. There is existing some element with that particular property. So उस केस में आप existential quantifier यूज करते हो. सो जैसे अगर मैं इसको रीड करूं तो इसका मतलब क्या है कि फॉर ऑल एक्स इन पी ऑफ एक्स, एंड इफ आई राइट लाइक दिस वे इट मीन्स दैट देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन एक्स सच दैट पी ऑफ एक्स. तो जैसे हमारे क्वेश्चन में क्या बोला है, एक्स इज माई फ्रेंड एंड एक्स इज परफेक्ट. सी अभी क्वेश्चन क्या बोला कि सम ऑफ माई फ्रेंड्स आर नॉट परफेक्ट. सो जब नॉट परफेक्ट बोला मतलब नेगेशन पी ऑफ एक्स आएगा. ठीक है, सम ऑफ माई फ्रेंड मतलब देयर एग्जिस्ट है ना, देयर एग्जिस्ट आया, तो देयर एग्जिस्ट सम एक्स सच दैट एफ ऑफ एक्स, कुछ तो फ्रेंड्स है और वो जो फ्रेंड्स है वो मेरे नॉट परफेक्ट है. देयर एग्जिस्ट सम एक्स, देयर एग्जिस्ट सम फ्रेंड्स विच आर नॉट परफेक्ट. यस, सम ऑफ माई फ्रेंड्स आर नॉट परफेक्ट. तो आप देख सकते हो आंसर क्या आएगा, ऑप्शन 2 आ जाएगा. सिंपल था काफ़ी. सी
अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है विच काइंड ऑफ क्लॉसेस आर अवेलेबल इन कंजक्टिव नॉर्मल फॉर्म। देखो दो होता है, एक कंजक्टिव नॉर्मल फॉर्म होता है और एक डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म होता है। कंजंक्शन मीन्स व्हाट, एंड ऑपरेशन, और डिसजंक्शन मतलब और ऑपरेशन। तो जब मैं कंजक्टिव नॉर्मल फॉर्म की बात करती हूँ तो ये होता है कंजंक्शन ओवर डिसजंक्शन ऑफ लिटरल्स, ठीक है, कंजंक्शन ओवर डिसजंक्शन ऑफ लिटरल्स। जैसे एग्जाम्पल a प्लस बी इंटू ए बार प्लस बी बार, क्या हुआ यहाँ पे, एंड ऑपरेशन अप्लाई हुआ है, ये क्लॉसेस है, एंड ऑपरेशन अप्लाई हुआ, लेकिन डिसजंक्शन किसका हो रहा है, लिटरल्स का हो रहा है। डिसजंक्शन मतलब और ऑपरेशन किसके बीच में हो रहा है, ये लिटरल है, ए बी लिटरल है मेरा वेरिएबल, सिंगल वेरिएबल, ठीक है। तो ये नेगेशन ऑफ ए एंड नेगेशन ऑफ बी, तो ये और ऑपरेशन हो रहा है, यानी कि डिसजंक्शन हो रहा है लिटरल्स का और फिर कंजंक्शन हो रहा है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, कंजक्टिव नॉर्मल फॉर्म, यानी कि इसमें क्या हो रहा है, डिसजंक्शन हो रहा है ऑफ लिटरल्स। सो द आंसर, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1। जब डीएनएफ की बात करोगे तो क्या होगा, ये डिसजंक्शन ओवर कंजंक्शन ऑफ लिटरल्स। तो ये ऐसे हो जाएगा जैसे ए डॉट बी प्लस से ए बार डॉट बी बार। सो यहाँ पे कंजंक्शन ऑफ लिटरल होगा एंड ऑपरेशन एंड फिर ओवर डिसजंक्शन, तो दैट वुड बी डीएनएफ। ओके, गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी, एंटी सिमेट्रिक, सिमेट्री है, तो जस्ट रिवाइज कर लेते हैं कि रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी मतलब जितने भी एलिमेंट्स आपके एक सेट में है, जितने भी एलिमेंट्स आपके एक सेट के अंदर है, उसमें से हर एक एवरी एलिमेंट के लिए अगर a कॉमा ए ऐसे रहेगा, एवरी एलिमेंट, एवरी एलिमेंट के लिए अगर a कॉमा ए रहेगा तो रिफ्लेक्सिव है। सिमेट्री का मतलब अगर आपके पास a कॉमा बी है सेट में, रिलेशन वाले सेट में, तो b कॉमा ए भी होना चाहिए, तो सिमेट्री होगा। ट्रांजिटिविटी तो आपको पता है कि a कॉमा बी है और b कॉमा सी है, तो आपका अगर a कॉमा सी भी सेट में है तो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड करता है। के बारे में अगर अभी एंटी सिमेट्री का बात करें तो देखो a कॉमा बी है आपके रिलेशन में और b कॉमा ए भी आपके रिलेशन में एग्जिस्ट कर रहा है और b इक्वल टू a है, तो वो एंटी सिमेट्रिक है। या तो फिर a कॉमा बी है जो आपके रिलेशन में है, लेकिन b कॉमा ए आपके रिलेशन में नहीं आ रहा है और b नॉट इक्वल टू a है, तो एंटी सिमेट्रिक है, ठीक है। तो हाँ अभी चेक कर ले हमारे क्वेश्चन के हिसाब से क्या होगा। तो देखो यहाँ पे a कॉमा ए है, b कॉमा बी है, e कॉमा ई, f कॉमा एफ, g कॉमा जी, c कॉमा सी और d कॉमा डी नहीं है, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, ठीक है। सिमेट्री चेक कर लेते हैं। b b है, c d है, c d है तो d c है क्या, नहीं। c g है तो g c है क्या, नहीं। d g है तो g d है क्या, नहीं, मतलब सिमेट्री भी नहीं है। एंटी सिमेट्री के लिए चेक करें, ठीक है। c कॉमा d बिलोंग कर रहा है रिलेशन में, पर d कॉमा c बिलोंग नहीं कर रहा है और d और c नॉट इक्वल है, तो ये हो गया एंटी सिमेट्रिक। सी जी को ले लो, c कॉमा g है तो g कॉमा c है क्या, रिलेशन में नहीं है और g और c दोनों इक्वल भी नहीं है। dg के लिए भी वैसे होगा, मतलब ये एंटी सिमेट्रिक है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा कि एंटी सिमेट्रिक है बट रिफ्लेक्सिव नहीं है। सो एंटी सिमेट्रिक एंड नॉट रिफ्लेक्सिव, सो b and not a will be the correct answer. Okay, let's move on to the next question. Verification of expression for the given boolean function. So actually this kind of questions will be solved by k maps, Karnaugh maps. Okay, so 2 वेरिएबल के लिए अलग होता है, 3 वेरिएबल के लिए अलग होता है और 4 वेरिएबल्स के लिए अलग होता है। आप सबको आता होगा लेकिन क्विक रिवीजन कर देते हैं इसका। तो इसके स्टेप्स ऐसे है कि पहले तो आप डिटरमाइन कर लो कि आपके के मैप कितने वेरिएबल्स के लिए बनेंगे, फिर आप मिन टर्म्स और मैक्स टर्म आइडेंटिफाई करो। अगर सम ऑफ प्रोडक्ट है तो 1 पुट करो, मिन टर्म्स जो भी दिए रहेंगे उनके पोजीशंस पे, और अगर आपका प्रोडक्ट ऑफ सम है तो 0 पुट करो जो भी मैक्स टर्म की पोजीशंस आएंगी क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। और फिर हमको रेक्टेंगुलर बॉक्सेस बना के ग्रुप बनाना है 2 का, 4 का या 8 का, ओके। एंड देन फॉर्म द ग्रुप्स मेड इन द स्टेप 5, फाइंड द प्रोडक्ट टर्म्स एंड देन सम इट अप। सो हमारे क्वेश्चन में यहाँ पे क्या दिया है, सम ऑफ प्रोडक्ट्स है,
ये एक्चुअली सम ऑफ प्रोडक्ट्स वाला क्वेश्चन है, तो हम 1 पुट करेंगे ये सारी पोजीशंस पे, ठीक है। तो मैं आपको दिखा दूँ, और ये 4 वेरिएबल्स ABCD के लिए हो रहा है यहाँ पर। तो आपको बताऊँ तो देखो 2 वेरिएबल के लिए के मैप कैसे बनेगा, इस तरीके से 2 वेरिएबल जैसे मेरा A और B है, तो के मैप ऐसे बनेगा 0 1, यहाँ पे 0 1, ये 0 1 2 3, ओके। एंड देन फिर 3 वेरिएबल होगा तो हमारा के मैप कैसे बनेगा, इस तरीके से कुछ बनेगा। यहाँ पे A, यहाँ पे 2 वेरिएबल आप लोगे, और फिर यहाँ पे 0 1, ये 0 0 0 1 1 0 यहाँ होगा, और ये 1 1, सो ये होता है 0 1। ये मैं मिन टर्म्स मैक्स टर्म्स लिखने हैं यहाँ पे हमको आइडेंटिफाई करके, ठीक है। तो 0 1 2 3 4 5 एंड 6 7, ठीक है। और हमारा 4 वेरिएबल्स का, तो 4 वेरिएबल की हम जाते हैं क्वेश्चन पे। ये देखो अभी हमारे यहाँ पे 4 वेरिएबल है, तो 4 वेरिएबल का मैं के मैप ड्रॉ करती हूँ। ये मैंने ड्रॉ कर लिया है, मैं लिख देती हूँ। यहाँ पे AB होगा, यहाँ CD होगा, ये 0 0 0 1 1 1 0 और फिर ये 1 1, यहाँ आएगा 0 0 0 1 1 0 1 1, लिखेंगे 0 1 2 3, फिर ये 4 5 6 7, लास्ट रो में आएगा 8 9 10 11, और फिर यहाँ पे आ जाएगा 12 13 14 और 15, क्योंकि आप देखो 15 क्या होता है 1 1 1 1, सो यहाँ से आप रीड करोगे तो 1 1 1 1 आएगा, ठीक है। तो चलो ये मैंने बना लिया है। अभी ये जो दिया हुआ है यहाँ पे मिन टर्म्स, वहाँ पे मैं 1 पुट कर देती हूँ, ठीक है। तो 0 है, 0 पे 1 1, 2 वाले ब्लॉक पे 1, 3 वाले पे 1, 6 वाले यहाँ पे 1, 12 वाला 1, 13 14 15। अभी हमको ग्रुपिंग करना है, ठीक है। तो मैं ग्रुपिंग करना स्टार्ट कर देती हूँ। अगर मैं ग्रुपिंग करूँगी तो ये इस तरीके से मैक्सिमम हमको कवर करना है, मैक्सिमम नंबर ऑफ वंस कवर करना है। तो ये एक ग्रुप हो सकता है, ये एक ग्रुप हो सकता है, पावर ऑफ 2s में 2 4 या 8 ऐसे करके ग्रुपिंग करना है। तो ये तीनों तरीका है इनको ग्रुपिंग करने का। तो अब अगर आप रीड करना चालू करें कि जो भी एरिया आपने कवर किया है वहाँ पे कैसे सिंप्लीफाई हो रहा है, तो हम देखेंगे कि ये फर्स्ट रो और थर्ड रो है, राइट। तो फर्स्ट रो 0 0 है, यानी कि A बार B बार, ठीक है। और फिर थर्ड रो क्या है 1 1, यानी कि AB, ओके। और फिर यहाँ पे ये कवर हो रहा है ना, यहाँ पे ये 2 1 कवर हो रहे हैं। तो 2 1 के लिए यहाँ पे ये क्या है 10 ना, 10 यानी कि C और D बार, मतलब C D बार आ रहा है। लेकिन कौन से रो है, फर्स्ट और सेकेंड रो इन्वॉल्व है, तो सेम एलिमेंट कौन है A यानी कि 0 0 यानी कि A बार, ठीक है। तो ये एक आंसर हो गया, मतलब कि ये एक आंसर है। हाँ, अभी देखो हम इस तरीके से भी तो इसको ये कर सकते हैं ना। सेकेंड अप्रोच क्या होगा, ये तो फर्स्ट अप्रोच है। सेकेंड अप्रोच में मैं ये दोनों 1 को भी तो क्लब कर सकती हूँ, है ना। मतलब ये वाला रो को ऐसे ही रखना है, ये वाला जो फर्स्ट रो है 1 1 1 1 वाला, और फिर यहाँ पे 1 है, और फिर वापस से 1 1 1 1 है, राइट। तो ये दोनों रो तो ऐसे ही रहेंगे, लेकिन ये वाला पार्ट को मैं कवर करती हूँ। तो फिर क्या होगा, इसमें भी ये फर्स्ट है तो 0 0 यानी कि A बार B बार हो गया, और फिर यहाँ पे 1 1 है यानी कि ये हो गया A B। और फिर जब इन दोनों को मैं लेती हूँ तो ये तो C और D वाला पार्ट है, राइट। 10 यानी कि ये हो गया C D बार, 0 है तो D बार, ओके। सो C D बार लिखा। लेकिन रो कौन सा आ रहा है, सेकेंड रो और थर्ड रो ना। सेकेंड रो और थर्ड रो में क्या है 0 1 और 1 1, कॉमन एलिमेंट 1 यानी कि B लिखा। तो ये हो गया BCD बार, यानी कि हमारा जो आंसर है करेक्ट वो है B एंड D ओनली। तो 2 कार्नोव के मैप्स बने हमारे ये गिवन क्वेश्चन के लिए। तो आई होप आपको ये के मैप का आइडिया थोड़ा समझा होगा, और इस टाइप के क्वेश्चंस अगर आएंगे तो आप क्विकली स्कोर भी कर सकते हो ऐसे क्वेश्चंस पे। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक करना, और ऐसे मोर वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड कीप सपोर्टिंग। टेक केयर, बाय।